अंकल जी, मैं आप सब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਹੋ, मतलब सारे आप है ना अंकल जी? हाँ जी, रिटायर फौजी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਰਹਿਣਾ ਸੌਣਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹਰ ਗਾँव 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਖੁਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਿਠਾਏਗੀ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਸਾ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਲਪਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਫੌਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੌਜ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ 16 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 34 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਫੌਜ ਦੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 34 ਸਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰੇ ਧਰਨਾ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵਿਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਗੇ, 12 ਘੰਟੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਠੰਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ? ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਬੜੀਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ उनकी ज़मीर सोई हुई है, मरी वाले तो नहीं उठेंगे, जिनकी थोड़ी बहुत सोई हुई है उनको आना चाहिए इधर। जो त्यौहार का माहौल है और अपने भविष्य जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी का सवाल है। अब किसी को सहन नहीं करना, हर एक को बारी बारी आना चाहिए। हमने तो अपने घर में रूटीन बांध दिया है कि हमारे 2 महीने हो गए, अभी 10-10 दिन हम जाया करेंगे, 10 दिन बाद दूसरा आ जाया करेगा। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅੰਕਲ ਜੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆਰਮੀ 'ਚ, सूबेदार रिटायर्ड है। ਤੁਸੀਂ रिटायर्ड सूबेदार है हो अंकल जी। जैसे अब आगे गर्मी आ रही है तो अब गर्मी में आपका कैसे मतलब प्लानिंग है कि आप कैसे करोगे गर्मी में? कोई नहीं, गर्मी में पंखे लगेंगे, सारी सुविधाएं इधर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सर्दी मुख्य होता है,
सर्दी जो काट लिया तो गर्मी तो कट ही जाएगा। गर्मी में तो ओढ़ने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, बिछाने के लिए हल्का सा रहेगा, पंखा चाहिए, पंखा भी मिल जाएगा, लग ही रहा है चारों तरफ से। और यहाँ तो मैं बता रहा हूँ देश की जनता को कि यहाँ जो भी आ रहा है, हमने खुद 31 साल फौज में नौकरी किया है, 31 ईयर्स हो गए हैं उसमें आपको हमको इतना खुशी महसूस नहीं हुआ जहाँ कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमको ये गर्व महसूस होता है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ देश के लिए, किसान के लिए, जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए बाकी जो है धर्म, सभी धर्म स्थलों से बड़ा जगह यह बन गया है, उससे भी पवित्र हो गया है। यहाँ पर जो भी आ रहा है देश के लिए बचाने के लिए लड़ रहा है, उसके मन में शक्ति बढ़ती है कि हाँ हम में भी कुछ है देश करने के लिए। इसलिए देश के युवाओं से और आम लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि यहाँ पर आएँ, एक बार देखें, उनकी आत्मा को जो है कि बल मिलेगा। यहाँ पे अपने अंकल जी 34 ईयर्स हो गए, अंकल जी को 22 ईयर्स हो गए, ये वाले अंकल जी को 31 ईयर्स हो गए हैं। इन्होंने पहले फ़ौज में सेवा करी, अब यहाँ पे किसानों की सेवा कर रहे हैं। अंकल जी मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप खेती भी करते हो, मतलब रिटायर होने के बाद? आर्मी जाने से पहले भी किसान थे और आने के बाद भी किसान है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਦੋ नहीं है, किसान जवान दोनों एक ही समझा जाता है। और ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये जो भी खाना खाता है, जो भी अनाज खाता है, सबका आंदोलन है। चाहे किसी की ज़मीन है चाहे नहीं है, सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और ये तो त्योहार की तरह चल रहा है, इधर हर एक को 4 दिन आना चाहिए, देखना माहौल देखना चाहिए आकर। ये तुसी सारे आप सब देख सकते हो यहाँ पे, ये लोगों का सबका प्रोटेस्ट है। जो जो खाना खाता है सबका प्रोटेस्ट है। सब यहाँ पे आओ, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, आप आओ, आप टाइम बिता के यहाँ पे जाओ। हाँ जी अंकल। हाँ जी सर, आप भी मतलब किसान हो पीछे से, और अब पहले फ़ौज में थे, अब आप दोबारा रिटायर होकर किसानी कर रहे हो। आपको कितना टाइम हो गया सर मतलब रिटायर हुए हुए? जय हिंद, वंदे मातरम। हरविंदर सिंह राणा, पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ वेटरन एसोसिएशन से। मैं 16 साल सर्विस की है, देश सेवा की है और अब खेती कर रहा हूँ अपनी। और अभी इन 3 कानूनों को लेकर हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें डुबाने की कोशिश उन्होंने ही की जिनको तैरना हमने सिखाया। तो इस सरकार को हम ही ने बनाया और ये हमें ही आंखें दिखा रही है। जो जीत होती है वो सत्य की होती है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। हाँ जी सर, आपको कितना टाइम हो गया सर फौज में? आपने कितना टाइम नौकरी करी? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ। मैं सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, मुझे 31 साल सरहद पर मैंने वहाँ पे अपने सुनहले पल दिए, अपनी जवानी बिताई। यहाँ मैं आंदोलन में 2 महीने से ऊपर हो गया, हम लोग लगातार बैठे हुए हैं। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल यहाँ पे आपसे ये है कि यहाँ पे आप सब चढ़ती कला मतलब बढ़िया है, चल रहा है यहाँ पे सब, कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ पे कोई किसी तरह की? जी ऐसा लग रहा है कि हमने जीवन में पहली बार अपने माँ का दूध का कर्ज अदा किया है। अपने हम बॉर्डर पे थे तो तनख्वाह लेते थे, हम टीएडी लेते थे, लेकिन यहाँ हम अपने पैसे से आए हैं और हम अपनी सब कुछ, कोई पैसा लेने में कोई तनख्वाह नहीं है, हम यहाँ कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से परसों मोदी जी ने राजसभा में हंसे अट्ठहास, वैसा ही अट्ठहास कंस ने किया था, दुर्योधन ने किया था, रावण ने किया था, सबने किया था, अंग्रेजों ने भी किया था अट्ठहास। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी मौन, इस किसानों के मौत पे मौन धारण के तो हंस रहे थे कि अरे कौन, कैसे लोग। और वही दुर्योधन गया, कंस गया, रावण गया, ईस्ट इंडिया कंपनी गई, पूर्ववर्ती सरकारें भी गई। और इस अट्टहास करने, जो कि लाशों पर बैठकर भारतीय लोकतंत्र की छाती बैठकर, भारतीय लोकतंत्र की छाती पर किले ठोकर बैठे हुए हैं, ये नष्ट होंगे, नष्ट नाबूद हो जाएंगे, इसका इतिहास गवाह है। बिल्कुल सर, हम जीत अपनी होगी यहाँ पे सर। नहीं, जीत की बात कह रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ, वही सरकार थी, कहती थी नकली किसान, कहती थी जो है कि नकली किसान है, खालिस्तानी है। क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारते इसी असली किसानों से बातचीत किया। अगर एक खालिस्तानी थे तो खालिस्तानी से बात की। और बताऊं, कहते थे इंच भर पीछे नहीं हटेंगे। जानते क्या हुआ? अरे तुमने तो 9 संशोधन कर डाले, 16 संशोधन की बात कर रहे, पूछते हो काला क्या है, फिर आप कह रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो कि हम 1.5 साल के बिल पे होल्ड कर लीजिए, ये क्या है? तो जीत निश्चित। अभी आपने देखा पंजाब में नगर निगम में
सुपड़ा साफ हो गया। हम जीत पर जीत, विजय पर विजय हासिल करते जा रहे हैं। हमने 65 जीता, 71 जीता, करगिल जीती। हमारी जीतने की आदत है। हमने पंजाब भी जीत लिया, हम सब जीतेंगे। तुम दफन कर दिए जाओगे। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। जवान और किसान आज अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ना जानता है। जीतेंगे, हम जीतेंगे। साडा हक इत्थे रख। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान जवान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत